आपने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है क्लास में कि क्रिश्चियनिटी में शीप, शेपर्ड ये सिंबॉलिकली यूज किए जाते हैं. The sheep are the innocent, the the enemy, the wolf is cunning and cruel, and the shepherd is the one who protects the sheep from the cunning and cruelty of the enemy, the cruel one. So in this poem, Blake has used lamb to express himself. Let us have a look at the poem. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Gave thee life and bid thee feed. By the stream and over the mead, gave thee clothing of delight, softest clothing, woolly bright, gave thee such a tender voice, making all the vales rejoice. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? In the very first stanza, the poet expresses his views about the lamb. He addresses lamb and beautifully asks a question to the lamb and says, "Oh little lamb, do you know who created you? Do you know who made you? Do you know all this beauty on your part, your clothing, your softness, your wool, your fur, your tender voice? ये जो तुम्हारी खूबसूरत नर्म नाजुक आवाज़ है, ये जो तुम्हारे जिस्म पे वूल है यानी तुम्हारे कपड़े हैं, जो तुम्हारे अंदर ज़िंदगी है, जो तुम्हारे अंदर रूह है और जो तुम्हें खाने पीने को मिल रहा है, जो मीट में तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ठीक है? और ये जो तुम सारी चीज़ें लेके यहाँ वादियों में भागते फिरते हो, मिनमिनाते फिरते हो, उछलते कूदते फिरते हो, तुम्हें पता है ये सारी की सारी खूबसूरती, ये सारा का सारा हुस्न, ये सारी की सारी ब्यूटी, ये तुम्हें कहाँ से मिली है?" And here actually the first stanza consists of the whole question. And after he has put this question to the little lamb, in the next stanza he himself answers the same question. वो उसे मुखातिब करके कहता है, "Little lamb, I will tell thee." Repeatedly कहता है कि I will tell thee, little lamb, he is called by thy name, for he calls himself a lamb. He is meek and he is mild. He became a little child. I a child and thou a lamb. We are called by his name. Little lamb, God bless thee. Little lamb, God bless thee. उससे बताता है कि you were actually created by the Creator who gave you thy name, who gave you your name of a lamb. And that God is himself meek, himself mild, himself innocent, himself pure, as you are pure. And at the end of the stanza, at the end of the poem, the last two lines, he gives his blessings to the little lamb. "Oh little lamb, may God bless you, God bless you." So you can see on the right side a poem from the past, pages of the works perhaps that were published in the time of William Blake or even afterwards. So we will have next the explanation of this very poem. So this poem, The Lamb, was included in the Songs of Innocence, which was published in 1789. And this poem is considered as one of the great lyrics of Indian literature. This poem actually comprises a dialogue between the child and the lamb. बच्चे और लैम के बीच में एक डायलॉग है और इसमें दो मेजर एरिनास दिखाए गए हैं, द क्रिश्चियनिटी एंड द पेस्टल ट्रेडिशन, द रूरल ट्रेडिशन. Lamb, as we have already discussed, lamb is a universal symbol. Symbol of what? Symbol of selflessness, symbol of innocence, and also represents Jesus. The lamb is a gentle imagination
ऑफ डिवाइन ह्यूमैनिटी। ये उस ह्यूमैनिटी का एक रिप्रेजेंटेशन है, सेल्फलेसनेस की रिप्रेजेंटेशन है, इनोसेंस की रिप्रेजेंटेशन है, और ये अपने आप को आइडेंटिफाई करता है क्राइस्ट के साथ और ट्रिनिटी ऑफ चाइल्ड, लैम और रिडीमर यानी गॉड के साथ। The poem presents the ideal charity, substantiating Christian compassion of caring, the ideals of the Lamb of God. ये उसको एक आइडियल के तौर पे रिप्रेजेंट करता है जो गॉड का लैम्प है, जिसमें सारी गुड क्वालिटीज अवेलेबल है। However, the Christian connotations also contain the implications of sacrifice, death, and tragedy, and even Christ himself, who sacrificed his life for the sins of the world, for the sins of the people. Please note over here, ये sins लिखा हुआ है. This is not sins, rather this is sins. You can replace it with the word sin. क्रिश्चियंस का ये कॉन्सेप्ट है ना कि क्राइस्ट की जो सैक्रिफाइस है, वो सैक्रिफाइस बेसिकली फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ हिम है, कि उसने क्राइस्ट ने सैक्रिफाइस दे के उनके सिंस को कंपनसेट किया, उनका कफारा अदा किया। द लैम्प कंसिस्ट्स ऑफ 2 स्टांजास। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 स्टांजास में है, ईच विद 5 राइम्ड कपलेट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो ये रोमांटिक पोएट्री का हमने कोर्स स्टार्ट किया था, तो उसमें शुरू में ही हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, उनमें कुछ टर्म्स जो हैं वो स्पेसिफिकली डिस्कस की गई थी। ठीक है, तो ये दोनों स्टांजास जो हैं ये क्या है, बोथ कंसिस्ट ऑफ 5 राइम्ड कपलेट्स। आई विल नॉट टेल यू ओवर हेयर कि कपलेट क्या होता है और राइम्ड कपलेट क्या होता है, बट यू पीपल विल रिवाइज फ्रॉम योर मटेरियल्स कि ये राइम्ड कपलेट क्या होता है। Repetition and the first and the last couplet of each stanza turns this line into a refrain and help in providing the poem in song-like quality. वो repetition जो है ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि राइम और repetition जो है ये पोएट्री में क्या रोल प्ले करती हैं, तो ये song-like quality हमें इनसे मिल रही है यहाँ पे। The flowing first and the soft vowel sound also makes a contribution to this effect and also bring forth the bleating of the lamb or the lisping character of the child's chant. आप ये भी इसका क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आएगा, लैम्ब का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप उसमें ये डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस पोएट ने यूज़ की हैं और स्पेसिफिकली कौन कौन सी साउंड्स जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, आपको एसोनेंस, कॉन्सोनेंस याद होगी, रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एटसेट्रा। तो आप जब इस पोएम को डिस्कस करेंगे तो आप उसके ये फीचर्स जो हैं वो मेंशन करेंगे। The Lamb is a didactic poem. In this poem, the poet pays a tribute to Lord Christ, who was innocent and pure like a child and meek and mild like a lamb. ये सारी की सारी क्वालिटीज जो यहाँ डिस्कस हो रही हैं एज द रिप्रेजेंटेटिव क्वालिटीज ऑफ क्राइस्ट, उन्हें वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लैम्ब। वो इनोसेंट है, प्योर है, बिल्कुल ऐसे जैसे चाइल्ड इनोसेंट है, मीक है और माइल्डनेस लाइक अ लैम्ब है। द लिटिल चाइल्ड आस्क्ड द लैम्ब इफ ही नोज हु हैज क्रिएटेड इट, हु हैज ब्लेस्ड इट विद लाइफ, द कैपेसिटी टू फीड बाय द स्ट्रीम ऑल ओवर द मीडो। वो उससे पूछता है, बच्चा जो है वो इनोसेंटली, बच्चे बड़े इनोसेंट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो वो उससे पूछता है, लैम्ब से पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने पैदा किया है और किसने तुम्हें जिंदगी दी है, was blessed with life, और किसने तुम्हें नदियों के पास, स्ट्रीम के पास और मीडोज में, चरागाहों में किसने तुम्हें ये खाना मुहैया किया है। The child asks him if the lamb knows who has given this bright and soft wool. ये देखें इमेजेस कौन कौन से यूज किए हुए हैं। जैसे कहता है कि ये जो तुम्हारी ब्राइट और शाइनिंग वूल है, सॉफ्ट वूल है,
जो तुम्हारे लिए सर्व्स एज इट्स क्लॉथिंग, तुम्हारे लिए कपड़ों का काम करती है, ठीक है। एंड द टेंडर वॉइस विच फिल्स द वैली विद जॉय, और ये जो तुम्हारी आवाज़ है जो यहाँ पे तुम खुशी से मिनमनाते हो तो इस वैली में, इस वादी में गूंजती फिरती है, ये सब का सब तुम्हें कहाँ से मिला है? द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द लाइन, विलियम ब्लेक्स पोएम द लैंड, द चाइल्ड हु इज सपोज्ड टू बी स्पीकिंग। अब यहाँ पे बच्चा क्या है? वो माउथ पीस ऑफ द पोएट है, वो नैरेटर है, वो स्पीकर है, ठीक है। वो इसकी एक हमें छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि जो लिटिल लैम्ब है एज एन एनिमल, उसको हम जब फिजिकली देखते हैं वो उसकी इनोसेंस हमें नज़र आती है, उसकी सॉफ्टनेस नज़र आती है, उसकी वूल नज़र आती है, उसकी मीक सी आवाज़ नज़र आती है, और वो भागता भागता हमें आवाज़ें निकालता हुआ यहाँ पे नज़र आता है चरागाह के पास या नदी के पास, या वो उसको एज अ, वो उसकी मुख्तलिफ सिम्बल्स को यूज़ करके, मुख्तलिफ इमेजेस को यूज़ करके वो हमारे सामने एक फिजिकल पिक्चर जो है वो शो करवाता है। Has been endowed with the bright and soft wool which serves as its clothing. It has a tender voice which fills the valley with joy. The reader are provided with the true portrait of lamb. बिल्कुल ठीक है, हमें उसका पूरा एक पोर्ट्रेट नज़र आता है, और उसमें बच्चा जो है वो रिपीटेडली उससे ये क्वेश्चन करता है कि भाई तुम्हें बनाया किसने है? Who made you? Who created you? Who gave you all these gifts that you are enjoying in this world? और ये क्वेश्चन रिपीटेडली होता है। फिर क्या होता है? द चाइल्ड एड्रेसेस लिटिल लैम्ब टू आस्क हिम हु मेड हिम एंड वांट्स टू असर्टेन वेदर ही नोज हु मेड हिम। उससे कंफर्म करता है कि पता है तुम्हें किसने, पहले उससे पूछता है कि हु मेड दी। एट द एंड ऑफ द स्टैंजा उससे पूछता है डू यू नो हु मेड दी, पता है तुम्हें कुछ? द चाइल्ड वांट्स टू नो हु गेव लैम्ब हिज लाइफ, हु फेड हिम व्हाइल लिविंग अलोंग द रिवर। He also wants to know from the lamb who supplied him with the pleasant body cover, the clothing, the wool. The stanza is marked by child's innocence, which is the first stage in Blake's journey to truth. यहाँ पे ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बच्चा जो है वो, बच्चे का सवाल भी मासूमाना है, ठीक है। उसका लैम को मुखातिब होना, और फिर उससे मुखातिब हो के बजाय कोई बच्चों के से सवाल करना, वो निहायत मासूमाना अंदाज में से पूछता है हु मेड यू, किसने तुम्हें क्रिएट किया है? So here is the whole introduction of William Blake, as well as his first poem that is in our syllabus, The Lamb. So if you have any questions, you people are supposed to write your questions in the comment box on the YouTube page. Okay? इसी पेज पे जहाँ पे आप ये पोएम इस वक्त सुन चुके होंगे, इसी के एंड पे कमेंट्स के सेक्शन में आप अपने सवालात लिखें, और सवालात लिखने के बाद इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस करेंगे, आपको इंडिविजुअली भी रिप्लाई किए जा सकते हैं, और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई किया जा सकता है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने ये पोएम पढ़ ली है, सुन ली है, तैयार कर ली है? यू पीपल विल मार्क एट लीस्ट वन क्वेश्चन, वन कमेंट, वन ऑफ योर आइडियाज इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप अपने क्वेश्चंस, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रिप्रेजेंट करें, ताकि हमारे लिए यह सर्टन हो सके कि आपने यहाँ पे इसको पढ़ लिया। एंड बाय दिस टाइम here our lecture comes to an end. I hope you people might have enjoyed it, or you will enjoy it. Literature as a whole is a thing of joy, a thing of beauty. So thank you very much. Be in touch. See you again. Allah Hafiz.